not in my habit actually. So please do recall me. So I'm repeating once again the answer to question number 4. First of all, there can be two alternatives about how Derry will live his future life. He can either go back to his seclusion or he can lead a positive life. We are going with the positive aspect because हमें positivity के साथ में stick करना है. So even though Denny was in conversation with Mr. Lamb for a very small amount of time, a very brief amount of time, that conversation had a deeper impact on Denny. He liked the way Mr. Lamb had approached his life with so much positivity, so much enthusiasm, even though he was also physically disabled. Previously, we can see that Derry was which impact? अरे इतनी impact की तो बात कर रहे हैं हम. Previously, we can see Derry was an emotionless person. He did not care or get concerned about anyone else. He did not enjoy the company of anyone else. Even he did not like the company of his family. The word which you said, impact, enthusiasm, affect, क्या word नहीं समझ में आ रहा है? I'm already recording this, so if you miss any word, later on you can find it on Scholars ERP. So anyway, previously we can find that he was stone cold, he was emotionless, he did not concern himself with other people. But later on, he became a little changed. He started caring about little things. He liked the company of Mr. Lamb. He wanted to go back to his garden, his home, and talk to him about things, listen to him about his stories, and so many other things. So from now on, we think that Derry would not go back to his previous life, but as a ट्रिब्यूट मतलब कोई मर जाता है तो उसके लिए हम जो श्रद्धांजलि देते हैं, दैट इज ट्रिब्यूट. आई एम राइटिंग द वर्ड हियर. ट्रिब्यूट और होमाज सुना होगा, होमाज. As a tribute or homage to Mr. Lamb, he will now be a changed, positive, optimistic person. Deeper or something. Deeper impact. डीपर इम्पैक्ट मतलब बहुत गहरा प्रभाव पड़ा उनकी लाइफ पर, डेरी की लाइफ पर. सो दिस इज द आंसर यू हैव टू राइट. अपने आप लिखना है आपको. जिन्होंने कल का होमवर्क नहीं किया था, कंप्लीटेड बाय टुडे. यू हैव 2 days. वैसे कोई दूसरे सब्जेक्ट ज्यादा आपके चल नहीं रहे हैं, आर्ट्स वालों के चल रहे होंगे शायद तक, बाकी यू आर फ्री. सो डू कंप्लीट इट. आई एम गोइंग टू स्टार्ट अनदर चैप्टर टुडे. All right. Come to your second chapter, the second chapter of your book, Tiger King. Very interesting chapter, very fascinating chapter. Come on. I hope everyone has opened up it. Yes. Tiger King by Kalki. Kalki is actually a pen name. आपको पता होगा बहुत सारे ऑथर्स जो है वो अपना जेन्युइन नेम यूज नहीं करते हैं, अपना पेन नेम यूज करते हैं, just for more popularity, or you can say for fun, whatever it is. So this Tiger King story is about Kalki, is about a Tiger King, sorry, it's written by Kalki. So क्या है, किसी ने पढ़ा है, किसी को पता है, कभी सुना है टाइगर किंग की स्टोरी? और टाइगर किंग सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? देयर कैन बी न्यूमरस ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन तो ये हो सकता है कि सर एक ऐसा टाइगर है जो बाद में किंग बन जाता है, या ऐसा किंग है जो रात को टाइगर बन जाता है. एनीथिंग कैन बी पॉसिबल. टाइगर किंग मतलब जिसके पास में टाइगर एज अ पेट हो, ऐसा किंग जिसका टाइगर पेट हो. और क्या हो सकता है?
सो मेनी पॉसिबिलिटीज कैन बी देयर. ऐसा किंग जिसको टाइगर ने मारा हो, टाइगर ने मार दिया हो, किल, या उल्टा भी हो सकता है. देयर कैन बी एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज विद द टाइटल टाइगर किंग. क्या लगता है आपको 1 2 3 4 5 में से कौन सा पॉसिबिलिटी आपको लगता है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस स्टोरी? A very interesting, very satirical, very amazing story it is. Who is fierce as a tiger? Okay. जो टाइगर जैसा ब्रेव और बोल्ड है, ब्रेव एज अ टाइगर, फियर्स और फिरोशियस एज अ टाइगर, ये भी एक सिक्स्थ पॉसिबिलिटी है. और महक ने बोला है सेकेंड वाला कि सर जो किंग जो है वो रात को टाइगर बन जाता है. अक्षय सिंह फोर्थ वन, जो टाइगर के ओके. दृष्टि सिंह फर्स्ट वन. ऑल राइट. So people have, students have different opinions, different ideas about what Tiger King might be. तो let me get started. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, सस्पेंस को रिवील नहीं करूंगा इसमें. I will not reveal the suspense. But here it is all about, it is all about a future prophecy. Prophecy क्या होता है? भविष्यवाणी जिसको हम बोलते हैं, भविष्यवाणी. दैट इज योर प्रोफेसी. प्रोफेसी. तो जब ये किंग का जन्म होता है, व्हेन ही इज अ लिटिल बेबी, तब एस्ट्रोलॉजर्स जो पंडित होते हैं, जो ज्योतिष होते हैं, वो प्रिडिक्ट करते हैं, वो एक ब्रॉडकास्ट करते हैं, फ्यूचर में प्रोफेसी को लेके आते हैं कि ये बंदा जो है इस ये बहुत पावरफुल होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत करेजियस होगा, बट अल्टीमेटली इसकी डेथ जो है, द डेथ ऑफ दिस किंग विल बी बाय टाइगर्स. तो जब ये किंग बड़ा हुआ तो इसने सोचा कि टाइगर मुझे मारे इससे पहले मैं ही टाइगर को मार देता हूं. उसने वो प्रोफेसी उसके दिमाग में थी कि मैं टाइगर से मरने वाला हूँ, टाइगर से मरने वाला हूँ. तो उसने सोचा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी. इफ टाइगर विल नॉट बी देयर इन माई किंगडम, then no tiger will be able to harm me or put me in danger or kill me. So that is why he went on a tiger hunting mission. वो टाइगर हंट के मिशन पे गया और उसने बहुत सारे टाइगर्स मारे. अब अल्टीमेटली उसकी डेथ टाइगर से हुई नहीं हुई, उसकी डेथ होती भी है या नहीं होती है, दैट वी विल डिस्कवर एट द एंड ऑफ द चैप्टर, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पॉइल द फन, आई डोंट वांट टू स्पॉइल द सस्पेंस. तो आई होप यू गॉट अ लिटिल आइडिया. ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है, एक भविष्यवाणी है. भविष्यवाणी में इतना सा बताया गया है कि द डेथ ऑफ दिस किंग विल बी फ्रॉम टाइगर. So the king goes on a tiger hunt and kills so many tigers. Let's see how the story is going to end. अब ये जो स्टोरी का नरेशन है, स्टोरी का डिस्क्रिप्शन है, दैट इज इन अ वेरी सटायरिकल मैनर. सटायर क्या होता है? सटायर क्या होता है? सटायर, इट मीन्स व्यंग्य. आपका जो व्यंग्य होता है, आप किसी पे कटाक्ष करते हैं, सरकाजम जिसको बोल सकते हैं, या आयरनी जिसको बोल सकते हैं, कि हम बात किसी और की कर रहे हैं, बात कुछ और कर रहे हैं, और उसका मीनिंग जो है वो पूरा ऑपोजिट निकलता है. इसका मतलब हम एंड में समझेंगे. इस चीज को याद रखना. सटायर मीन्स वॉट एवर वी आर टॉकिंग उसका ऑपोजिट में मीनिंग निकलता है, या हम जो समझते थे उसका बिल्कुल ऑपोजिट मतलब निकलता है. दैट इज सटायर, दैट इज व्यंग्य. व्यंग्य में यही तो बोलते हैं. आपके मम्मी पापा अभी पैंडेमिक में आपने उनके साथ 8 मंथ्स 9 मंथ्स कॉन्स्टेंटली स्पेंड किए हैं. हो सकता है आपका स्लीपिंग स्केड्यूल सुबह 6 बजे भी रहा होगा कभी कभी, और कभी कभी दिन में 11 से 12 बजे भी रहा होगा. होता है. मैं कभी कभी 6 बजे उठ जाता था, मॉर्निंग वॉक पे जाना, एक्सरसाइज करना, एवरीथिंग वाज देयर. और कभी कभी 11 12 बजे भी उठते थे. तो जब हम 11 o'clock 12 o'clock उठते थे, तो पेरेंट्स का क्या डायलॉग रहता था? उठ गया हमारा शहजादा. तो क्या एक्चुअल में हम शहजादा हैं क्या? ऑफ कोर्स नॉट. क्या हम प्रिंस प्रिंसेस हैं? नहीं है.
उनका व्यंग्य करने का तरीका है, एक तरह का टॉन्ट मारना है, सरकास्टिक वे में हमें कॉल आउट कर रहे हैं, हमें डांट रहे हैं कि आप कहीं के शहजादे हो क्या, कि आप 11-11 12 बजे तक उठ रहे हो, शहजादे भी इतने लेट तक नहीं उठते हैं. तो दैट इज आयरनी, दैट इज humor, exactly, and that is sarcasm. So this entire story is based on humor and sarcasm and hilarious incidents. इसमें जो ऑथर है वो अपने रीडर से भी इंटरैक्ट करता है. वो ऐसे बात कर रहा है जैसे वो एक स्टोरी को सुना रहा हो, वो स्टोरी को सुना रहा हो कि वंस अपॉन अ टाइम ऐसा होता था, वैसा होता था. इस तरह से आपकी स्टोरी का नरेशन है. और उसमें भी वो रीडर्स से बहुत बार इंटरैक्ट करता है. काफी ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी ऑथर ने डाले हैं फॉर द सेक ऑफ लाफ्टर, फॉर द सेक ऑफ कॉमेडी, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमर. दैट इज ऑल. सो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट रियलिस्टिक. ये स्टोरी रियलिस्टिक इंसिडेंट पे बेस्ड नहीं है. दिस इज प्योर फिक्शन. ये फिक्शनल स्टोरी है. फिक्शन समझते हैं, विच इज इमेजिनरी. इमेजिनरी. सो यू हैव टू कीप इन माइंड, फैंटेसी अलग हो जाता है. फैंटेसी में आपके फेरीज एंड ऑल आ जाते हैं. फिक्शन में आपकी ऐसी स्टोरी जो रियल नहीं है. फैंटेसी इज यूजुअली मैजिक एलिमेंट जिसमें होता है, दैट इज फैंटेसी. ऑलराइट. लाइक एवेंजर, एग्जैक्टली. एलियंस आते हैं, उसमें क्या क्या आता है, एवेंजर्स, दैट इज अ फैंटेसी फिल्म. हैरी पॉटर इज अ फैंटेसी फिल्म. एनीबडी फैन ऑफ हैरी पॉटर हियर? हैरी पॉटर के कौन कौन फैन है, जल्दी बता दो. Yes, so many people. Very good. I'm also a big Harry Potter fan. Love that thing. I have seen 100 times. Yes, me too. मेरे पास बहुत भारी कलेक्शन है हैरी पॉटर का. हैरी पॉटर महक. Same. Good, 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 good. Okay. Very good. Very nice to know. और I don't think so कोई टीचर आपसे शेयर करता होगा. Who made drawings of it? Have made drawings of it. Okay. We are fans of all fiction and fantasy movies. Exactly. Avengers हो गया, Lord of the Rings, Chronicles of Narnia, Harry Potter, all the. Who is he? He is a fictional character, Mehak. I'm going to make Hogwarts from clay, sir. Akshita, please do show me. आप जो भी बनाए हैरी पॉटर के regarding, do send me pictures of it. I'm very much interested in all these things. All right, let's come back to our story. Let's come back to our, what we can say, chapter, The Tiger King. The Tiger King. Let's start the chapter. The Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of this story. Hero. Hero के लिए एक बहुत अच्छा word है protagonist. Protagonist. जो लीड होता है, जो हीरो होता है, जिसके अराउंड पूरी स्टोरी होती है, उसको प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं. और जो विलन होता है, द विलन ऑफ द स्टोरी इज कॉल्ड एंटेगनिस्ट. एंटेगनिस्ट. या पॉजिटिव कैरेक्टर. वेरी गुड. वी कैन से इट्स अ पॉजिटिव कैरेक्टर. तो हियर, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये तो आपको डिसाइड करना है. आई वोंट से एनीथिंग राइट नाउ. बट प्रोटैगनिस्ट अभी हमारे स्टोरी का ये है, जो हमारा लीड हीरो है वो. अब उसके बहुत सारे नाम हैं. ही मे बी आइडेंटिफाइड हैज हिज हाइनेस जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत व्यग्र संहारी, महाराजाधिराज, विश्व भुवन सम्राट, श्री जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD, ACTC और CARCK. बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू टाइगर किंग. अब ये बताओ, हम किसी के आगे PhD लगाते हैं, किसी के आगे डॉक्टर लगाते हैं, किसी के आगे CA लगाते हैं. ये सब लगाने का क्या मतलब है? वी आर एक्चुअली डिग्निफाइंग दैट पर्सन. हम उसको डिग्निफाई कर रहे हैं, पर्सन को, उसका सम्मान कर रहे हैं. यस,
ये डिग्रीज का क्या मतलब है, ये टाइटल्स का क्या मतलब है? वी आर प्रोवाइडिंग देम रिस्पेक्ट, डिग्निटी और स्टेटस। तो पहले के जमाने में एक एक किंग के बहुत लंबे चौड़े नाम हुआ करते थे। जहांपना, दीनानाथ, इस तरह से उनको बोला जाता था। और इन्हीं नामों में, टाइटल्स में, महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम, दिस इज द नेम ऑफ प्लेस। इट्स अ विलेज इन साउथ, तमिलनाडु का एक विलेज है प्रतिबंधपुरम। और वहां पर एक राजा था, महाराजा था, उसका नाम क्या क्या था? हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सत व्यग्र संहारी। अब ये सारे फालतू के टाइटल्स जो हैं, इट इज जस्ट मेंट फॉर अ फनी एलिमेंट। इतने सारे नाम हैं इस महाराज के, इस किंग के। एंड दीज नेम are acquired because of his bravery, because of his power, his strength. वो बहुत ही पावरफुल था, इसलिए उसको इतने सारे नाम दे दिए गए। बट ऑफ्टन उसका नाम किस में हो जाता था तब्दील? टाइगर किंग। इतने सारे नाम ना बोल के वो किस नाम से जाना गया? व्हाट बिकेम हिज पॉपुलैरिटी, व्हाट बिकेम हिज फेम, व्हाट बिकेम हिज ग्लोरी? टाइगर किंग। पढ़ते हैं टाइगर किंग क्यों नाम पड़ा उसका। ऐसे मैंने बता दिया है आपको, बट स्टिल द इंसिडेंट इज वेरी वेरी फनी व्हेन द प्रिडिक्शन, द प्रोफेसी हैपेंस। लेट्स रीड अबाउट दैट। I have come forward to tell you, wait, yeah, I have come forward to tell you। अब ये जो हमारा क्या बोलते हैं, ऑथर है, वो हमसे इंटरैक्ट कर रहा है। I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King। मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, प्रेजेंट हुआ हूँ, to tell you the reason why he came to be known as a Tiger King। I have no intention of pretending to advance, only to end in a strategic withdrawal। वो बोल रहा है कि now I have come forward, I have come forward to tell you the story of Tiger King, and I have all the intentions of finishing the story। मेरे मन में सारे इरादे हैं, सारे इंटेंशंस हैं टू फिनिश द स्टोरी। मैं ऐसा प्रिटेंड कतई नहीं करूंगा कि अभी तो हम स्टोरी में आगे बढ़ रहे हैं और बाद में ले जाके मैं आपको स्टोरी फिनिश ना करूं। मैंने अभी स्टोरी स्टार्ट की है, तो ऑफ कोर्स आई विल फिनिश द स्टोरी। ये पूरा पैराग्राफ है, इट इज जस्ट टू इंटरैक्ट विद द रीडर्स। वो बताना चाह रहा है कि मैं आपको टाइगर किंग की स्टोरी बताने के लिए यहाँ आया हूं, और मेरा पूरा पक्का इरादा है इस स्टोरी को खत्म करने का। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस। एडवांस मतलब आगे बढ़ना। मैं अभी तो प्रिटेंड कर लूं कि हम आगे बढ़ रहे हैं स्टोरी में, और बाद में मैं उस स्टोरी से विड्रॉ कर लूं, अपने आप को पीछे खींच लूं। स्ट्रेटेजिक विड्रॉल मतलब पूरा प्लान्ड विड्रॉल। बहुत सारे स्टोरी टेलर्स जो हैं वो ऐसा ही करते हैं। कुल मिला के ये बताना चाह रहा है स्टोरी काफी मजेदार है अप टिल द एंड। The story is quite interesting, quite enticing, quite fascinating up till the climax, up till the end। बहुत सारी स्टोरीज ऐसी होती हैं, काफी अच्छी जा रही होती हैं, स्मूथ फ्लो में आगे बढ़ रहे होते हैं, और लास्ट में स्टोरी का एंड इतना डिसअपॉइंटिंग होता है दैट रीडर फील्स इरिटेटेड, रीडर फील्स फ्रस्ट्रेटेड। तो हमारा ऑथर अभी से हमें अश्योर कर रहा है, अफर्म कर रहा है दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। I am proceeding, I'm advancing to the story, and this will end in a very good manner। मैं उसमें से कोई strategic withdrawal नहीं करूंगा, मैं उसमें से पीछे नहीं हटूंगा। I will not retreat from the story। उसने और क्या बोला है? बहुत अच्छी बात बोली है। इवन द थ्रेट ऑफ अ स्तुका बॉम्बर। थ्रेट का मतलब हमने क्या पढ़ा था? मैंने आपको एक एक्टिविटी भी करवाई थी, स्वॉट एनालिसिस। आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को एनालाइज किया था। थ्रेट मतलब जो आपको डैमेज कर सकता है, जो आपको हर्ट कर सकता है, हार्म कर सकता है, आपको डिफिकल्टी में डाल सकता है, दैट इज थ्रेट। Even the threat of a Stuka bomber, Stuka is a missile, missile। तो
Even the threat of a stuka bomber will not throw me off track. The stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story. तो अब this is the humorous element, this is the comedy part. ऑथर बोल रहा है कि अगर कोई मुझे मिसाइल लेके भी डराए, मुझे कोई तोप लेके भी डराए कि हम आपको उड़ा देंगे यहां से, फिर भी मैं अपनी ट्रैक से पीछे नहीं हटने वाला. कौन सा ट्रैक? ये स्टोरी टेलिंग का ट्रैक. मैं इस स्टोरी टेलिंग के ट्रैक पे एक बार चल चुका हूं, और एक बार अगर मैं निकल गया तो मैं वापस इसमें से पीछे मुड़ने वाला नहीं हूं. आई विल नॉट गो ऑफ ट्रैक. भले मुझे कोई मिसाइल से, मुझे बॉम्ब से, मुझे एक्सप्लोजन से डरा दे, फिर भी मैं अपनी स्टोरी को कंप्लीट करके ही रहूंगा. द स्तुका, स्तुका वो जर्मन मिसाइल का नाम है. इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी. हेस्टी का मतलब फास्ट, फास्ट. बट अगर मुझे किसी ने मिसाइल लेके डराया तो हो सकता है मैं इस स्टोरी को जल्दी से खत्म कर दूं, बट खत्म जरूर करूंगा. आई विल डेफिनेटली फिनिश दिस स्टोरी, भले मुझे कोई मिसाइल से डराए या नहीं डराए. बट अगर किसी ने मुझे मिसाइल से डराया तो हो सकता है मैं स्टोरी को जल्दी फिनिश कर दूं, बट मेरा पूरा इरादा है इस स्टोरी को फिनिश करने का. यहां तक कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछो. Any word which you did not understand, any line which you did not understand, tell me. जल्दी से बता दो if you have any kind of doubt. No? Okay, very good. That's all right. Chalo. Right at the start, it is imperative. Imperative means compulsory, necessary, mandatory. अभी ये बताना जरूरी है. It is mandatory, it is imperative to disclose. Disclose मतलब to reveal. To reveal. It is mandatory to disclose. It is necessary to disclose that as a matter of vital importance. बहुत जरूरी बात बतानी जरूरी है about the Tiger King. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage. Indomitable मतलब अदम्य जिसको हम बोल सकते हैं, इनविंसिबल जिसको हम बोल सकते हैं, अनबीटेबल जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको ओवरकम नहीं कर सकते हैं, जिसको डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, डोमिनेट नहीं हो सकता है, दैट इज इनडोमिटेबल करेज. दैट टाइगर किंग का पर्सोना, टाइगर किंग की पर्सनालिटी, उसका चार्म ऐसा है दैट जो भी उसके बारे में पढ़ता है, whoever person reads about Tiger King, he will want to meet Tiger King. जो उसके बारे में पढ़ता है वो उससे मिलना चाहेगा ऐसे पर्सन से जिसका इनडोमिटेबल करेज है. ऐसा करेज, ऐसी बहादुरी, ऐसी पावर जो किसी के दबाने से नहीं दबती. इनविंसिबल, अजेय, जिसको जीता नहीं जा सकता, दैट इज अजय. तो ऐसा टाइगर किंग का ऑरा है, पर्सोना है, पर्सनालिटी है, दैट whoever person reads about his works, his courage, his activities, they will want to meet him face to face. But there is no chance of its fulfillment. But unfortunately हम उसकी मीटिंग टाइगर किंग से नहीं करा सकते हैं. क्यों नहीं करवा सकते हैं? बिकॉज एज भरत सेड टू राम, इमॉर्टल नहीं होता है. इमॉर्टल तो वो होता है जिसको कभी मारा नहीं जा सकता. मॉर्ट मतलब होता है मृत्यु, डेथ. हम बोलते हैं पोस्टमार्टम, तो मॉर्टम मीन्स होता है डेथ. इमॉर्टल मतलब जिसको मारा नहीं जा सकता. ऑब्वियसली टाइगर किंग को मारा जा सकता है टाइगर के थ्रू, बट वो इतना साहसी है. कुल मिला के ही इज वेरी ब्रेव, ही इज वेरी साहसी, ब्रेव, पावरफुल, शिवलरस बोल सकते हैं. और बाकी इनविंसिबल बताया था, अनबीटेबल बताया था, करेजियस बोल सकते हैं. तो ही इज अ वेरी पावरफुल पर्सन, ही वॉज अ वेरी पावरफुल पर्सन, बट देर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट. बट जो लोग इनसे मिलना चाहते हैं उनकी चाहत, उनकी विश अधूरी रह जाएगी. क्यों ऐसा? बिकॉज एज भरत सेड टू राम,
अबाउट दशरथ, क्या बोला था राम, राम को दशरथ के बारे में? The tiger king has reached the final abode of all living creatures. In other words, the tiger king is dead. जब दशरथ जी की डेथ हुई थी, तब भरत ने राम को बोला था कि हमारे पिताजी जो है वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनका स्वर्ग गमन हो चुका है, दे हैव गॉन टू हेवन, द फाइनल अबोर्ड, अबोर्ड मतलब घर, होम, प्लेस। तो द टाइगर किंग हैज रीच द फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, जहां सब जने जाते हैं मरने के बाद, वहां पर टाइगर किंग जा चुका है रेस्ट करने के लिए, फाइनल रेस्ट करने के लिए। तो द टाइगर किंग इज डेड। दूसरे शब्दों में कहें तो टाइगर किंग की मृत्यु हो चुकी है। तो हमें ये तो पता है टाइगर किंग करके कोई एक बहुत ही व्हाट इट मेंट टू बी हियर, व्हाट इट मीन्स टू बी हियर। इसका मतलब ये है कि कोई अगर, सी, टाइगर किंग वेरी ब्रेव, इसकी ब्रेवरी के बारे में पढ़ के हमें इसको फेस टू फेस मिलने की इच्छा होगी। देर इज अ डिजायर ऑफ मीटिंग हिम फेस टू फेस, बट दिस डिजायर कैन नॉट बी फुलफिल्ड। वाई दिस कैन नॉट बी फुलफिल्ड? बिकॉज टाइगर किंग जो है वो फाइनल अबोर्ड में जा चुका है। फाइनल अबोर्ड मतलब क्या? मृत्यु को प्राप्त हो गया, ही इज डेड। समझ में आया? महक, समझ में आया? यस, ओके, ओके। The manner of his death is a matter of extraordinary interest. वो जिस तरीके से मरा है वो बहुत ही extraordinary way में मरा है. The kind of death he had was very extraordinary. It can be revealed only at the end of the tale. Tale means story. Tale की spelling का ध्यान रखना. TAIL होता है आपका पूंछ और TALE होता है आपका story. So the story is very exciting, very interesting. This can only be revealed at the end of the tale, at the end of the story. The most fantastic aspect of his demise, demise means death, passing away. The most fantastic aspect of his death was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. और सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इंटाइसिंग, सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट क्या है कि जिस दिन टाइगर किंग का बर्थ हुआ था, जिस दिन टाइगर किंग पैदा हुआ था, उसी दिन एस्ट्रोलॉजर्स ने ये फोरटेलिंग, फोरटेल, ये वर्ब है, इसका फोर टोल्ड, और टोल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है। तो एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोर टोल्ड। मुझे ये बताओ यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है या थर्ड फॉर्म यूज हुई है? जल्दी से बताओ। यस, थर्ड फॉर्म, बिकॉज हैज, हैव और हैड के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट वन डे टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। तो उस दिन ज्योतिष लोगों ने बोला था कि इस प्रिंस को, इस न्यू बॉर्न बेबी को एक दिन मरना जरूर पड़ेगा। अब दिस इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ ह्यूमर, क्योंकि ये तो हर ह्यूमन बीइंग के लिए ट्रू है, जिसने जन्म लिया है, that person will eventually have to die. There is nothing doubtful in that. This is the rule of the universe. तो एस्ट्रोलॉजर्स ने ये प्रिडिक्शन किया, ये अपने आप में बहुत बड़ा फनी पार्ट है, बिकॉज देर इज नथिंग टू प्रिडिक्ट। दिस इज 100% गारंटीड एक्टिविटी टू हैपन, इवेंट टू हैपन। जो जन्मा है वो मरना पड़ेगा। तो एस्ट्रोलॉजर्स हैड foretold that one day the tiger king would actually have to die. तो भाई ये तो सबके लिए ट्रू है, but still we will continue this chapter now tomorrow, or yeah, tomorrow आपकी your classes will be there. Until then, complete all your question answers. Don't miss this chapter, it's quite funny. और इसमें काफी इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो सटायरिकल है, जिसका सटायर मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। Later on I will have to explain the satires, इसलिए don't miss the chapter's explanation. या आई विल पोस्ट द रिकॉर्डिंग। अभी मेरा इंटरनेट जो है वो काफी लिमिटेड रहता है, बट जब इंटरनेट वाईफाई होगा मेरे पास, आई विल पोस्ट ऑल द रिकॉर्डिंग्स ऑन स्कॉलर्स ईआरपी। इट्स ओवर, या क्लास इज गोइंग टू बी ओवर। तो कंप्लीट योर क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड टेक केयर गाइस, बाय। थैंक यू, थैंक यू,
Thank you, Nandini.